Assalamu alaikum, everyone, and good afternoon. First of all, welcome from the Management Association of Pakistan, and I would like to thank you all for taking out time and attending this session. Khalid Sahab started a series that is Safety at Home, and today is the second session of the series, and which focuses on electrical safety at home. Khalid Saab is an HSC consultant and founder at KL Technical, and he's having a 33 years of corporate experience, including national and multinational organizations. So Khalid Saab, over to you now. Thank you, Ushna. Assalamu alaikum and good afternoon to everybody. और ये जैसा कि उष्णा ने मेंशन किया कि we have started a series Safety at Home under the umbrella of Management Association of Pakistan. So this is second. The first one was ergonomics while working at home, and now this second topic we've selected is electrical safety at home. And why this topic so interested to me was because lots and lots of people are working from home these days. सारे लोग घरों से काम कर रहे होते हैं और उसमें कुछ बेसिक सेफ्टी टिप्स होती हैं जो कि हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं. अच्छा, प्लीज लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट, दिस इज नॉट अ डिटेल्ड वर्कशॉप ऑन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फॉर manufacturing or industrial environment. This is just a basic safety tips for working with the home appliances and day-to-day interacting with electricity at home. So just a simple basic workshop. अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की हम बात करते हैं तो उसमें पहला एक ज़हन में आता है कि जी इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सबऑर्डिनेट और बॉस और master or slave or white colored people, black colored people, or it doesn't have any racial discrimination. ठीक है? So everybody must treat electricity with respect so that it can serve you better. So एक बुनियादी एक principle है, deal with electrical appliances or electrical components at home or everywhere. अच्छा जी, एक just take 2-3 minutes to answer this question. बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर की और जनरली एक नाम जहन में आता है, तो जस्ट टेक 2-3 minutes and reply in your chat box, so then we will proceed further. आपके ख्याल में who was the gentleman who discovered electricity? Thomas Alva, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln. So William Gilbert, British scientist, electrical or mechanical engineer, Thomas Brown, and Benjamin Franklin. Why Ben Franklin is famous? And generally people answer this because of his famous experiment जो उसने वो किया था, एक kite, और जब thunderstorm आने वाला होता है, lightning हो रही होती है sky में, तो वो उसके end पे उसने एक metal object hang कर दी और then he felt sensation and tingling in his arm. तो उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी तो एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि कुछ सी फिशेस हैं, इलेक्ट्रिक फिश या ईल फिश जो कहलाती है, तो दे टेंड्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द सराउंडिंग. तो जनरली लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही कहते हैं कि ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अच्छा जी, देन अगेन देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच किल्स, एम्पियर और वोल्ट. अब एम्पियर और वोल्ट, एम्पियर भी एक एलियन टर्म नहीं होगी आप लोगों के लिए, और वोल्ट्स भी, वोल्ट्स का सब जानते हैं, ये जैसे इतने वोल्ट का करंट आ रहा है, इसमें 220 वोल्ट है या 1100 वोल्ट है या, और एम्पियर. अब इसमें एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है दोनों में. ठीक है, करंट नॉर्मली एम्पियर जो है वो एक यूनिट है टू मेजर करंट, और करंट क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग. ठीक है, वेरएज वोल्ट जो है वो फोर्स एट विच इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग. इसकी अगर एग्जांपल ले लें कि एक पाइप है, उसमें एक पानी फ्लो कर रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर, तो ये करंट है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको करंट कहते हैं, उसकी यूनिट ऑफ मेजर जो है वो एम्पियर है. इस तरह वोल्ट जो है
द फोर्स एट विच इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग। अब आप जैसे एक एग्जांपल है वाटर जेट की, एंड यू नो वाटर जेट इज यूज्ड एज अ कटिंग टूल। इट्स अ नाइस एंड सेफ कटिंग टूल। हाई प्रेशर पे वाटर जेट इवन कैन कट थ्रू द हार्डेस्ट मटेरियल विच इज स्टेनलेस स्टील और इवन मोर हार्डर मटेरियल जो है उससे आप यू कैन कट विद फाइन वाटर जेट। इट्स वेरी हाई प्रेशर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। तो अब हम इफ वी टॉक अबाउट एम्पियर, तो द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मिली एम्पियर टू 1 एम्पियर। 1000 एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर का मतलब होगा कि 1 एम्पियर। ठीक है। अब क्या होता है 1 मिली एम्पियर पे क्या होता है कि थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसेशन। इस 1 मिली एम्पियर पे आपकी बॉडी जो है वो फील करती है सेंसेशन या कि हल्का सा करंट है। जैसे अक्सर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि इफ योर रेफ्रिजरेटर इज नॉट अर्थ और माइक्रोवेव, उस पर आप हाथ लगाएं तो हल्की हल्की आपको सेंसेशन फील होती है। तो दिस इज अप टू 1 मिली एम्पियर करंट। 2 एम्पियर पे जब हम आते हैं तो माइल्ड शॉक में कन्वर्ट हो जाता है वो। फिर अप टू 5 एम्पियर जो ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर है, ये हम बाद में पढ़ेंगे क्या है, ये ट्रिप कर जाता है अगर इक्विपमेंट में लगा हुआ हो तो। ठीक है जी। 10 मिली एम्पियर पे कैनॉट लेट गो। वो जिसे कहते हैं ना कि वो हाथ लगाया और बिजली को वो चिपक गया, वो उसका हाथ चिपक गया। तो इस एम्पियर पे, इतने करंट पे कैनॉट लेट गो, हाथ चिपक जाता है। उसके बाद फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये जहाँ पे आपको एक रेड स्क्वायर नजर आ रहा है 30 मिली एम्पियर ऑनवर्ड्स जो है, यहाँ पे फिर सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है 30 अप टू 30 टू 90 मिली एम्पियर के करंट अगर आपकी ह्यूमन बॉडी में से पास हो रहा हो। और यू नो ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ह्यूमन बॉडी में अपने भी इलेक्ट्रिसिटी वाया न्यूरॉन और जो एक बायोकेमिस्ट्री है बॉडी में, उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा होता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन और हार्ट काम करता है। तो देन ये एक्सटर्नल करंट जो है जब बॉडी में से पास होता है तो फिर इंटरफेयर स्टार्ट होती है। उसमें बहुत सारे फिर आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सफोकेशन है 30 मिली एम्पियर पे जैसे मैंने बताया, एंड 30 से ये सफोकेशन बढ़ती है एंड एट 10 मिली एम्पियर योर हार्ट स्टॉप बीटिंग। हार्ट बीट रुक जाती है या रुक सकती है, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। कारण कुछ लोगों की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है बॉडी की, तो उससे कम एम्पियर पे भी ये हार्ट स्टॉप हो सकता है। और अब 300 तक जब पहुंचता है करंट बॉडी में तो ब्रीदिंग स्टॉप्स। सीवियर बर्न्स 900 पे, और 1000 मिली एम्पियर जो कि एक बल्ब जलाने के लिए 100 वाट का काफ़ी होती है। 1000 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर, इस पे ऑलरेडी जो है ये डेथ जोन में हम आ चुके होते हैं 30 से ऑनवर्ड। तो अ पर्सन कैन बी यू नो इलेक्ट्रिक्यूटेड टू डेथ। ठीक है। तो ये करंट है जिसमें जो आपको लीथर हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स कुछ इस तरह हो सकते हैं, पूरी स्किन जल सकती है या ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। और ब्लिस्टर के अलावा अगर ज़्यादा जैसे कि 600 मिली एम्पियर से ऊपर जाए तो आपका पूरा जो है ये बिल्कुल जैसे जस्ट लाइक अ कार्बन अपीयरेंस जैसे होती है ना, जल जाता है। जैसे आपका जब आप बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो जो गोश्त जो जल जाता है ना, ब्लैकनिंग हो जाती है, तो वो कंडीशंस भी आ सकती हैं। लेसन लर्न क्या है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, कि ग्राउंडेड बिफोर इट ग्राउंड्स यू। ठीक है। अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस विच कैन सेव लाइफ्स। और अब आपको ये देखना है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, इवन वायरिंग एट योर होम, वो प्रॉपर ग्राउंडेड है कि नहीं। और अमूमन जब भी आप नई वायरिंग करते हैं, घर में इंस्टॉलेशन होती है, तो आपके जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इस बात को यकीनी बनाता है कि योर ऑल ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी इज ग्राउंडेड। अर्थ होती है मेन, और आपकी जो
जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज होती हैं उनकी जो मेन सप्लाई होती है वो भी ग्राउंडेड होती है, लेकिन इसके बावजूद भी लीक हो जाता है कहीं, और अर्थ लीक हो जाता है और उसके बाद शॉक के इवेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। ठीक है, अब होम डिवाइसेस में जब हम बात करते हैं कि जैसे कि आपके पास मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आई, और आपकी मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पोल से जहाँ आ रही वो भी अर्थ है, और आपका जो घर में जो वायरिंग हुई हुई है वो भी अर्थ है, और ऑन टॉप ऑफ इट आपका इक्विपमेंट अगर अर्थ नहीं है तो यू कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल शॉक, जिसे हम फॉल्ट करंट कहते हैं। जाहिर है कि उसने ग्राउंड होने के वो यहाँ के बाद जो आपका फॉल्ट करंट आएगा इस इक्विपमेंट में, उसको भी तो ग्राउंड होना है, एंड इफ देयर इज नो अर्थिंग ऑफ दैट इक्विपमेंट, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो जाएगी एंड यू विल फील शॉक और करंट। ठीक है, अनलाइक अगर आप इसको इस इक्विपमेंट को ग्राउंड कर देंगे तो इट विल फाइंड ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, तो फिर आपकी बॉडी जो है उसको इवन इफ यू टच द सरफेस, अगर इस पर कोई फॉल्ट हो भी गया है तो वो ग्राउंड होता रहेगा और आपकी बॉडी से पास नहीं होगा, एंड यू वॉन्ट फील एनी शॉक। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि बिजली का झटका क्यों लगता है। ठीक है, व्हाट कॉजेज इलेक्ट्रिकल फायर इन होम्स। अब घरों में या किसी भी जगह, फैक्ट्रीज में भी, इवन प्रेमिसेस में, शॉप्स में, मॉल्स में आग लगने की जो बुनियादी वजह होती है उसमें वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग होती है, और अकॉर्डिंग टू NFPA विच इज़ नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, के अराउंड 70% जो आपके फॉल्टी और डैमेज इक्विपमेंट जो है वो 69% इलेक्ट्रिकल फायर, 69 to 75%, 70% इलेक्ट्रिकल फायर्स कॉज करते हैं। ठीक है, इनमें लैंप शामिल हो सकते हैं, लाइट फिक्सर्स हैं, कॉर्ड एक्सटेंशन बॉक्सेस हैं, प्लग्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स जो आपके मेन वहाँ लगे हुए हैं पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स होते हैं। उसके बाद इसके अलावा आपके घरों में जो मिनिएचर जो सर्किट ब्रेकर हो, वो भी एक फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर्स ही होती है। फॉल्टी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, लैपटॉप, सेलफोन, चार्जेबल लाइट्स, और ये सारी चीज़ें, और फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर घर में, जो कि लीक ऑफ गैस की सूरत में हो सकता है, और द मोमेंट इट फाइंड्स एनी सोर्स ऑफ इग्निशन तो इट कैन ignite. So when looking for potential fire hazard in your home, always be sure to contact with the qualified electrician or professional, और खुद जो है वो अपना काम करने की जरूरत नहीं, या किसी अनक्वालिफाइड और अनस्किल्ड इलेक्ट्रिशियन से काम ना करवाएं। इलेक्ट्रिकल फायर्स में एक बुनियादी वजह आपके यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बॉक्सेस हो सकती है, और ओवरलोडिंग। अमूमन हम ये सिचुएशन देखते हैं घरों में भी, ऑफिस में भी, कि भाई आपका एक मेन सॉकेट प्लग है, वहाँ से आपने एक्सटेंशन लगाई, और वहाँ से आपने एक और मल्टीपर्पज़ प्लग लगाया, उसके ऊपर एक और लगाया, उसके बाद ये 2 3 4, और जब आपने इसको ऑन किया, मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एक्सटेंशन बॉक्स, और दिस कुड हैपन। और फिर एक दफ़ा जब ये आग लग जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है, देयर इज़ अ पैनिक सिचुएशन, और लोग घबरा जाते हैं, और किसी को ये याद नहीं रहता कि मेन स्विच भी ऑफ करना है या पावर डिस्कनेक्ट कर देनी है। और इमेजिन देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स हमारे घरों में, सोफ़ा होता है, कुशन्स हैं, कारपेट है, कर्टन्स हैं, लॉट ऑफ प्लास्टिक कंपोनेंट्स एट होम, और फिर वो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है फायर का, एंड फायर में बिकम अनकंट्रोलेबल। Another potential source of fire could be your cell phone. अब बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि आपकी जो लिथियम आयन बैटरीज हैं इन योर सेल फोन, इन योर लैपटॉप, कंप्यूटर्स, कैन इजीली ब्लो अप और इग्नाइट ओवर हीटिंग की वजह से और ओवर चार्जिंग की वजह से। और अमूमन कुछ लोग ये घरों में गलती करते हैं कि वाइल स्लीपिंग वो अपना सेल फोन जो है वो सरहाने पे रख के, इवन पिलो के पास रख के, बेड पे रख के वो सो जाते हैं और चार्ज हो रहा होता है।
और दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस, वेरी अनसेफ एक्ट, और कुड बी अ डिजास्टरस, और ज़ाहिर है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस टाइनी apparently a harmless device in your hands. ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना है. और अगर if there is a sign of battery malfunction और swelling up of battery, बैटरी का भी आप निकाल के देखें. बैटरी को ऑफ एंड ऑन आप इंस्पेक्ट करते हैं सेल फोन में, लैपटॉप में, तो वो ओवर चार्जिंग से या यूजेज से वो स्वेल होनी शुरू हो जाती है. दिस इज द टाइम व्हेन इट मे बिकम क्रिटिकल. उससे पहले भी हो सकती है, आपको वो फेमस इंसिडेंट तो याद होगा, सैमसंग ने अपना एक पर्टिकुलर मॉडल जो है वो रिकॉल किया था बिकॉज ऑफ लिथियम आयन बैटरी जो है वो एरोप्लेन में एक्सप्लोड हो गई थी और बहुत मुश्किल से वो फायर कंट्रोल हुई थी. तो उसमें अब ये बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं आपको ये अलाउ नहीं करती हैं, और उस ज़माने में भी वो वाला पर्टिकुलर मॉडल जो था वो बैन हो गया था. यू कैन नॉट टेक दिस in your hand carry or pocket. Electrical cable overload और cable jumbling. अच्छा, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि जब आप केबल को कॉइल कर देते हैं और उसमें से बिजली पास होती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लक्स की वजह से केबल जो स्टार्ट वार्मिंग आउट, और एक वक्त आता है कि वो इतनी हीट हो जाती है कि उससे आप केबल की जो इटसेल्फ जो इंटेग्रिटी है इट इज कंप्रोमाइज, और उसमें वो हीट की वजह से आग लग सकती है केबल में भी, ओवर हीटिंग की वजह से. ये सिचुएशन, नेवर फोल्ड योर चार्जिंग केबल्स इन सच अ वे. ये सिर्फ ट्रेवल करने के लिए होती है, अदरवाइज इसको आपने स्ट्रेट रखना है. जितने आपके पास कम से कम कॉइल हो, जम्बलिंग हो, उतना वो सेफ है, और ओवरलोडिंग तो होनी नहीं चाहिए. ठीक है, दिस सिचुएशन, एक 150 रुपीज का ये जो सॉकेट है, अगर इसको टाइम पे बदला ना जाए और इग्नोर किया जाए और ऐसे ही काम चला लिया जाए तो इट कुड बी डेंजरस फॉर योर ऑफिस और योर होम, वेयर एवर इट इज. ठीक है, तो नेवर इग्नोर स्लाइटली ब्रोकन और मेल फंक्शन इलेक्ट्रिक सॉकेट और स्विच, फौरन रिप्लेस कर दें उसको. और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी जो क्वालिटी है वो जो IEEE स्टैंडर्ड्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर्स जो IEEE है, उसके स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतरते अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं या मेल फंक्शन कर जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं. तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. और अच्छी क्वालिटी के सॉकेट्स एक्सपेंसिव होते हैं, इम्पोर्टेड वन जो होते हैं फिर लोग अमूमन उससे अवॉइड करते हैं, और आपका जो जो नियर बाई इलेक्ट्रिशियन है वही आपको कहता है जी ये ले लें, सस्ता है, अच्छा है, काम करेगा. तो जो काम चलाओ अप्रोच है ना, इट कुड बी डेंजरस फॉर योर होम एंड ऑफिसेस. अनदर कॉमन हाउस होल्ड डिवाइस जो है जिसमें के पोटेंशियल फायर रिस्क है, वो है आपका स्प्लिट एयर कंडीशनर. और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं होम्स में, ऑफिसेज में, जिसमें बिकॉज ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन और मेल फंक्शन ऑफ इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट, उसमें आउटडोर में तो चले अगर आग लगेगी तो वो आपके घर में दाखिल नहीं हो सकती, अमूमन वो बाहर होते हैं. बट व्हाट इफ देयर इज अ फायर इन योर इंडोर एयर कॉन यूनिट, और इट कुड बी डेंजरस. ठीक है, be careful if there is any sign of burning, plastic, malfunctioning of your split air conditioner, तो कहीं से आपको प्लास्टिक जलने की बू आ रही है. एंड बाय द वे दिस इज कॉमन फिनोमेना फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. जरा सी भी अगर आपको प्लास्टिक बर्न होने की स्मेल आती है, इमीडिएटली फाइंड द सोर्स ऑफ दैट ऑडर और स्मेल, और उसको आप स्विच ऑफ कर दें, कॉल द क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन एंड फिक्स द प्रॉब्लम, rather than neglecting it. और अभी कुछ नहीं हुआ, जब धुआं निकलेगा या ओपन फ्लेम आएगा तो फिर हम रिएक्ट करेंगे. नो, दिस इज अर्ली वार्निंग स्मेल जो है, तो नेवर इग्नोर दैट बर्निंग स्मेल. फिर आपका कॉमन हाउस होल्ड डिवाइसेस में आ जाता है यूपीएस. यूपीएस में दो नुकसान आते हैं. एक तो ये कि आपका जो चार्जिंग यूनिट है इट में स्टॉप वर्किंग और उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है. दूसरा ये
कि आपकी बैटरी जो है इट में ओवरचार्ज और इट में एक्सप्लोड, और अगर आपने उसकी मेंटेनेंस नहीं की और उसको प्रॉपर आपने पानी का लेवल मेंटेन नहीं किया तो उसमें भी एक्सप्लोड हो सकती है बैटरी और आग लग सकती है। देखिए ये इट्स गुड प्रैक्टिस कि आपने ये बैटरी के ऊपर आप डेट ऑफ परचेज लिख लें, कब आपने परचेज की थी, इसके ऊपर आप ये स्टिकर भी अगर आप प्रिंट आउट करके लगा सकते हैं। फायर डायमंड होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्रोजन का निशान है। और एक और प्रोडक्शन हो सकती है कि आपके ये कमर्शियली अवेलेबल है फायर बॉल्स, जिसमें कि ड्राई केमिकल पाउडर भरा होता है। इन केस आपका यूपीएस अगर है और अनअटेंडेड है तो उसमें आग लगती भी है तो ये दिस फायर बॉल विल एक्सप्लोड एंड इट कैन एक्सटिंग्विश फायर इन योर एब्सेंस व्हेन यू आर नॉट होम। अच्छा, उसमें एक और गुड प्रैक्टिस ये हो सकती है कि आप जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, मे बी फॉर 1 डे और 2 डेज और फॉर अ वीकेंड, तो आप बेहतर है कि आप यहाँ पे एक चेंज ओवर स्विच लगाएं, जो कि इसमें इंडिकेशन होती है 0 मीन्स ऑफ, 1 कुड बी यूपीएस और मेन इलेक्ट्रिक, और पोजीशन 2 पे, दोनों में से एक पोजीशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ यूपीएस है, ऑफ है, एंड मेन इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक जो आ रही है। जब आप बाहर जाएं तो इसको यूपीएस को आप चेंज ओवर स्विच से आप डायरेक्ट बाईपास कर दें एंड इट विल नॉट, बाईपास करके इसको ऑफ कर दें, इट विल नॉट एक्टिवेट, और एटलीस्ट यू कैन एलिमिनेट वन रिस्क ऑफ फायर इन योर एब्सेंस। तो ये सेफ्टी टिप हो सकता है यूपीएस के साथ। और आपको पता है कि यूपीएस यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के बहुत कम मिलते हैं, सारे के सारे होममेड लोकल ब्रांड्स हैं, और सर्किट कुड ब्लो अप और समथिंग कुड गो रॉन्ग एनी टाइम। और इसी तरह बैटरी में आपको एक और केयर करनी है कि इसके जो स्टॉपर्स होते हैं इनको आप बहुत ज़्यादा ओवर टाइट ना करें, ताकि आपको जब मेंटेनेंस करनी हो तो उसमें उसको इजीली खोल दें। इसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसको क्लॉग नहीं होना चाहिए, उसको आप पिन से या किसी चीज़ से साफ कर दें। वो आपका हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए होता है। जब बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो हाइड्रोजन रिलीज हो रही होती है, तो वो अगर ब्लॉक हो जाएगी तो बैटरी में स्वेल अप एंड एक्सप्लोड, क्योंकि हाइड्रोजन को फिर कोई स्केप रूट नहीं मिलेगा। और बैटरी जो है इसको घर में आपने वेल वेंटिलेटेड प्लेस में रखना है, ओपन शेल्फ में रखना है, कबर्ड में नहीं रखना है, किसी ऐसी जगह कन्फाइंड स्पेस में नहीं रखना है। तो ये टिप्स हैं यूपीएस केयर की। फिर आपके पास जनरेटर्स हैं घर में, और अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जनरेटर जो है उसकी फ्यूलिंग कर रहे होते हैं वाइल जनरेटर इज ऑन। नेवर डू इट। चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, उसकी आपने फ्यूलिंग नहीं करनी है वाइल जनरेटर सेट इज ऑन। पहले से आप उसका टैंक फिल करके रखें, और अगर आपका बीच में लंबे अरसे का ब्रेकडाउन है और टैंक को आपको दोबारा भरना है तो टर्न इट ऑफ, और कुछ देर के लिए घर में आप इमरजेंसी लाइट से काम चलाएं और इसको आप रिफिल करते रहे। बिल्कुल आप आइसोलेट कर दें, प्लग भी निकाल दें इसका मेन से। तो दिस इज अनदर सेफ्टी टिप। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता जी, चलने दो, वो खुद कर रहे होते हैं। वजह उसकी होती है कि दे आर नॉट क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियंस एंड दे टेक ह्यूज रिस्क फॉर देयर लाइव्स एंड लाइव्स ऑफ अदर्स एज वेल। फिर एक और कॉमन फिनोमेना है, अक्सर आपने घरों में आयरन बोर्ड देखे होंगे जो कि इनक्लोजर के साथ होते हैं। उसमें आपने आयरन की, उसके बाद आपने आयरन को आयरन बॉक्स में रखा और उसका डोर क्लोज कर दिया, तो एक तरह से समझे वॉल यूनिट की तरह से वो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इफ यू फॉरगेट टू टर्न ऑफ द आयरन, यहाँ से आपने मेन स्विच का ऑफ नहीं किया और अंदर आयरन जो है वो ऑन ऑफ होती रही, और आपका ये सारा वुडन स्ट्रक्चर है और देयर इज अ चांस कि ये ओवर हीट होके कुछ गड़बड़ हो जाएगी, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपका पूरा वुडन स्ट्रक्चर में ब्लो अप। इसमें आप एक सेफ्टी डिवाइस लगा सकते हैं विच इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, नॉट अ रॉकेट साइंस, कि आप डोर के साथ आपका जो एक, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में आपने देखे होंगे जब आप उसको खोलते हैं तो लाइट जल जाती है, उसमें छोटा सा एक पुश बटन लगा होता है, जब डोर क्लोज होता है तो वो उसको प्रेस करता है और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है सर्किट। तो यही आप आयरन बोर्ड में लगा सकते हैं डोर के साथ। जैसे आप डोर क्लोज करेंगे तो डोर विल प्रेस दिस बटन, अगर आप इसको ऑफ करना भूल भी गए तो योर आयरन विल बी टर्न ऑफ। तो ये एक सेकेंडरी प्रोटेक्शन डिवाइस आप घर में लगा सकते हैं। और वो तो ये कि इसको आप ऑन छोड़े ही नहीं, मेक श्योर कि ये ऑन ना रहे।
Another potential source of fire is instant water heaters, जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं और उसमें गैस भी होती है, दोनों तरह के होते हैं। गैस में ये चांस है कि वो आपके कन्फाइंड स्पेस में, अगर आपके अंदर बाथरूम में लगा है तो गैस भर जाएगी, और फिर जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो द रूम में एक्सप्लोड, वो गैस आग पकड़ लेगी, इतनी ज़्यादा है। और अगर वो इलेक्ट्रिकल है तो शॉर्ट सर्किट है और उसमें आपका पानी भी ट्रेवल कर रहा है तो इलेक्ट्रोक्यूशन के चांस होते हैं। तो बी केयरफुल एंड कीप इट वेल मेंटेन्ड एंड वेल इंस्टॉल्ड। कोशिश करें कि ये बाथरूम के अंदर ना लगाएं, बाहर लगाएं, सिर्फ पानी की लाइन्स अंदर आए। फिर आपके फॉल्टी MCBs हैं, जो कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, घरों में ही अक्सर लगे होते हैं, और समटाइम्स वी इग्नोर देयर कंडीशन, उसकी आप कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग नहीं करते हैं और इट कैन इग्नाइट। ट्रिप तो बाद में होंगे, उससे पहले वो जल जाएंगे और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आग लग सकती है। फिर ये सिचुएशन, एंड आई हैव सीन दिस sort of cabling in many offices and even homes, especially जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो अपार्टमेंट बिल्डिंग में there is a common डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जहाँ मीटर्स लगे होते हैं, केबल्स होती हैं, तो वहाँ ये सिचुएशन होती है। और इवन घरों में भी अगर आप नीचे जाके देखें अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, तो सूरत हाल कोई ऐसी ही होती है। बी केयरफुल। फिर एक और कॉमन आपके पावर टूल्स हैं घर में। घर में तो आपके पास, अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो आपका उसका आई एम श्योर कि इसमें प्लग भी होगा, लेकिन जो बाहर से लोग काम करने आते हैं उनकी जो ड्रिल मशीन की जो कंडीशन है वो ये होती है। एंड आई सीन सो फ्रीक्वेंटली कि जी केबल यहाँ से कटी हुई है, तो आपकी जो स्लीव है ये बिल्कुल रप्चर हो चुकी है। एंड आई हैव नेवर सीन इलेक्ट्रिशियन विद द केबल माउंटेड विद दिस सॉर्ट ऑफ प्लग। वो ये बहाना बनाते हैं कि जी हर घर में सॉकेट मुख्तलिफ होता है, तो ये हमारा प्लग जो है हो सकता है कि ना लगे, यूनिवर्सल प्लग वो कैरी नहीं करते हैं, और इस सिचुएशन में देयर इज अ चांस कि ये मेल फंक्शन कर जाएगी या कहीं स्पार्क होगा एंड योर एरिया कुड बी इग्नाइटेड। बी केयरफुल। एंड सेम अप्लाइज टू योर अदर अप्लायंसेस। अगर उसकी केबल किसी भी आपके जो किचन अप्लायंसेस हैं, टोस्टर है, आपके इलेक्ट्रिक केटल्स है, फूड फैक्ट्री है, फ्रायर्स हैं, अगर इस सिचुएशन में केबल है तो रिप्लेस द इंटायर केबल रादर देन पुटिंग अ मास्किंग टेप ओवर हियर, और यहाँ पे आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के उससे मरम्मत करा लें, वो यहाँ पे कनेक्टर लगा के उसको मास्किंग टेप से बंद करके चला जाए। नो, रिप्लेस द इंटायर केबल। कॉमन अनसेफ प्रैक्टिसेस घरों में ये होती है कि आप ये 3 पिन सॉकेट्स हैं जिसमें अर्थ भी है, इसमें आप ये लगाने की कोशिश करते हैं और देयर कुड बी अ चांस ऑफ अर्थ लीक, और उसमें आपको जो अप्लायंसेस हैं या जो कंपोनेंट है उसमें फॉल्ट आ सकता है और आपको करंट भी लग सकता है। या अमूमन लोग इसको स्क्रू ड्राइवर से अप करते हैं यहाँ से प्लेट, और इसके बाद ये यहाँ से जो प्लेट है ये स्पेस बना देती है, इसमें केबल इंसर्ट करके इसको दोबारा दबा देते हैं। दिस प्रैक्टिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड सेम प्रिकॉशन अप्लाइज टू ट्रेवल आयरन। बाज़ लोग ट्रेवल आयरन, जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स होते हैं, समटाइम्स वो अपनी ट्रेवल आयरन साथ लेके जाते हैं और उसकी केबल जो है उसमें उसको इस तरह कर देते हैं कि जहाँ जा रहे हैं पता नहीं, उस जगह आपके पास कोई प्लग में मेरा प्लग कंपेटेबल हो कि ना हो, तो डोंट डू इट। बेटर यूज ट्रेवल एडॉप्टर, इसका जो ओरिजिनल प्लग है उसको लगा रहने दें। ठीक है। अच्छा, डोंट ट्राई टू बी डू इट योर सेल्फ इलेक्ट्रिकल रिपेयर, जैसे कहते हैं DIY इलेक्ट्रिकल रिपेयर, अरे मैं खुद कर लूंगा मुझे पता है, नेवर डू इट। और आपके 2 हाथ हैं, आपने मुंह में टॉर्च पकड़ी हुई है, और ऑन टॉप ऑफ इट समटाइम्स कंधे पे आपका कान में मोबाइल फोन भी लगा हुआ है, एंड यू आर डूइंग समथिंग एंड इट मे लीड टू दिस। प्लीज अवॉइड दिस थिंग। ओके जी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स फॉर योर होम। चेक दैट यू आर यूजिंग द करेक्ट voltage in your fixture and appliances. Never overload outlets.
sockets with too many plugs. Never replace or repair damaged electrical. Don't use damaged electrical cords or components. Always replace or repair. ठीक है? Keep your used and unused cords tidy and secure to prevent damage. आपकी extension boxes को अगर यूज में नहीं है तो उनको आप safe and secure जगह पे रखें. Unplug all of your unused appliances to reduce potential risks. Keep all your electrical devices and outlets away from water. प्रॉपर स्पेस दें फॉर एयर सर्कुलेशन के लिए. आप कन्फाइंड स्पेस में ना रखें. रेफ्रिजरेटर जो है वो कम से कम 6 से 8 इंच दूर रखें दीवार से. इसी तरह माइक्रोवेव और हीटिंग डिवाइसेस हैं. एग्जॉस्ट फैन आर क्लीन. एग्जॉस्ट फैन में बाज़ दफ़ा डस्ट जम जाती है, मट्टी जम जाती है, और ख़ासतौर पे उन एरियाज में जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे डस्ट विद ह्यूमिडिटी कैन क्रिएट शॉर्ट सर्किट. और अगर गॉड फॉरबिड वो एग्जॉस्ट फैन आपके किचन में लगा हुआ है और देयर इज अ लीक ऑफ गैस, और अगर आपने उसको जलाया और टर्न ऑन किया तो यू कैन इमेजिन व्हाट कुड हैपन. हीटिंग अप्लायंसेस को आपने प्रॉपर लुक आफ्टर करना है, उनकी मेंटेनेंस रखनी है, और अगर कोई मेल फंक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपने क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन से, मैकेनिक से उनको रिपेयर करवाना है. रिकमेंडेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस घर में ये रिकमेंड की जा सकती हैं. अब ये ज़रूरी नहीं कि ये जो है वो हर कोई लगा ले, लेकिन दीज आर रिकमेंडेड. जैसे फॉर एग्जांपल आपके ड्राई रन प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं. ये इसलिए कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज नो वाटर इन योर अंडरग्राउंड टैंक और समबडी टर्न ऑन द मोटर, ठीक है, ये पंप है, इसके अंदर केसिंग में एयर होगी, इट विल कीप रनिंग रनिंग रनिंग, और वो ड्राई रन होते होते it may overheat or your entire motor could be blown up. ठीक है, तो उसमें बेहतर है कि आप ड्राई रन प्रोटेक्टर लगा लें कि अगर इधर नीचे पानी नहीं है तो द मोमेंट इट डिटेक्ट्स कि देयर इज नो फ्लो, नो वाटर, देयर विल बी नो फ्लो एंड नो स्टार्ट ऑफ पंप. ठीक है, तो could be a protection device for your motor as well as your home. उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने का डर नहीं होगा. फिर सर्किट ब्रेकर्स हैं, बहुत सारे आते हैं. अर्थ लीक सर्किट ब्रेकर्स अमूमन आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पे लगते हैं, जो आप घर बनाते हैं या आपका जो कहीं लेते हैं घर रेंट पे. मेक श्योर कि आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहाँ पे ये आपके अर्थ लीक सर्किट ब्रेकर्स, या इनको आप रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर्स भी कहते हैं, GFCIs भी कहते हैं. पर्पस इनका एक ही होता है कि आपकी जो है अगर अर्थ नहीं हो रही, लीक हो गई है, तो वो पूरी हाउस होल्ड अप्लायंसेस को, घर की वायरिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और ये आपके MCBs होते हैं, ये आपके हर गैजेट के लिए, जैसे कि हर आपके रूम के लिए अलग होता है, हर एयर कंडीशनर का, रेफ्रिजरेटर का, माइक्रोवेव का, हर एक के लिए अलग अलग आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगे होते हैं. ये काम इस तरह करता है ELCB कि जैसे नेचुरल है, आपकी करंट आ रही है और आपका ये ओवरलोड नहीं है और करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, एक सिस्टम में से. द मोमेंट देयर इज अ हाई फ्लो ऑफ करंट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और वो ग्राउंड हो गया, आपका आपका अर्थिंग प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, तो इट विल सेंस एंड ट्रिप द इक्विपमेंट. उसका फ़ायदा ये है कि आपका अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं लीक हो रहा है तो उसका इक्विपमेंट भी प्रोटेक्ट होगा और उसको ऑपरेट करने वाला जो है वो भी सेफ रहेगा, और सिस्टम विल ऑटोमेटिकली ट्रिप. प्लग्स रिप्लेस कर दें, सॉकेट, स्विचेस, अंडररेटिंग केबल इस्तेमाल नहीं करें. ऑलवेज हायर सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन, ये मैं बार बार कहूँगा. और कीप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और आउटलेट अवे फ्रॉम वाटर. प्रोटेक्ट स्मॉल चिल्ड्रन, ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को इससे दूर रखें. और यहाँ पे ये सेफ्टी कवर आते हैं, जो सॉकेट्स यूज़ में नहीं है वहाँ पे आप ये कवर इस तरह ये पूरे इंसर्ट हो जाते हैं और इसको ब्लॉक कर देते हैं, तो अ चाइल्ड कैन नॉट इंसर्ट एनीथिंग और पुट अ फिंगर इन द होल. तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना ओवरकम कर सकते हैं. अनप्लग unused appliances and store ports safely out of reach of pets, children.
ठीक है, thank you very much. So this is end of my presentation. This is my contact number and email, and I'm switching to that chat mode now. अच्छा जी, हाई टेंशन में ज़्यादा घरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 एम्पियर के होते हैं. उसमें तो ये है कि इट कैन गो अप टू 15-20 और मे बी मोर, क्योंकि वो बहुत हाई वोल्टेज लाइन होती है, तो उसमें एम्पियर्स कुड बी ट्रेमेंडसली हाई. घरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10-12 एम्पियर तक जाते हैं. वो भी ब्रेकर्स होते हैं, वरना तो 2-3 एम्पियर पे वो ट्रिप करने के लिए डिज़ाइन किए हुए होते हैं. हाँ, अर्थिंग एंड लाइट अरेस्टर्स, हाँ प्रिंसिपल सेम है, पर्पस भी सेम है, लेकिन लाइटनिंग अरेस्टर्स जो होते हैं दैट इज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स. बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है या अपार्टमेंट बिल्डिंग है, और इफ देयर आर थंडरस्टॉर्म्स अराउंड, तो जो आसमानी बिजली है वो आपकी बिल्डिंग को डैमेज करने की बजाय लाइटनिंग अरेस्टर्स के थ्रू ग्राउंड हो जाए. और अर्थिंग जो है वो बेसिकली ये भी अर्थिंग होती है, लेकिन मैंने जिस अर्थिंग और ग्राउंडिंग की बात की वो आपके घर के जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और वायरिंग हैं या इक्विपमेंट हैं, अप्लायंसेस हैं, उसकी अर्थिंग है. लाइटनिंग अरेस्टर्स होते हैं फॉर द एंटायर बिल्डिंग एंड structure. There is a question about what about LiPo battery? देखिए, बैटरी सारी की सारी जितनी भी होती हैं, लिथियम आयन है या आपकी जेल वाली बैटरीज हैं या लेड एसिड बैटरीज हैं, सब में प्रॉपर केयर तो रिक्वायर्ड होती है. बैटरीज को आप ये नहीं सोच सकते, देयर इज नो यूनिवर्सल बैटरी कि वो आप उसकी मेंटेनेंस और केयर ना करें और इट विल सर्व यू विदाउट एनी फॉल्ट. तो आई वुड पुट ऑल द बैटरीज इन द सेम कैटेगरी कि उनकी आप प्रॉपर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस जरूरी है. Even so-called maintenance free batteries are also not maintenance free. उसकी भी आपको कुछ maintenance करनी पड़ती है. Right. There is a very interesting question by Ghazanfar Riza. He's saying during this lockdown, all shops are closed. How to repair these sockets? Like it's challenging time. It's a good question. Challenging time है. देखें, you can use my practice. I have contacts of 1 or 2 electricians. जहाँ my previous employer, वहाँ पे जो आपके कंपनी इलेक्ट्रिशियंस होते थे, उनके आगे जो कॉन्ट्रैक्टर के इलेक्ट्रिशियंस होते थे, वो है नंबर ऑफ हैंडफुल्स ऑफ इलेक्ट्रिशियंस. और इसी तरह आपके जो घर में काम करने वाले जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे किसी ना किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा या आपके जान पहचान के लोग हैं, कहीं ना कहीं से आप इलेक्ट्रिशियन का कॉन्टैक्ट लेके इस ब्रेकडाउन टाइम में तो आप एक मेक शिफ्ट रिपेयर करवा सकते हैं. इवन ही इज नॉट सो मच हाईली क्वालिफाइड, लेकिन वो आपकी माइनर रिपेयर्स तो कर सकता है. और आप किसी क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन का आप डेटाबेस रखें और यू कैन कॉन्टैक्ट हिम. घरों पे आके काम कर लेते हैं. मेरे घर 2 दफा आ चुका है इलेक्ट्रिशियन, मेरा इलेक्ट्रिशियन. Right. Okay. So the next one is Fireball contain DCP. I think this is a comment by Qurban Ali. Fireball contains DCP powder, and for electric fire CO2 is recommended. हाँ कुर्बान साहब, एक्चुअली डीसीपी जो है ना, ये तीनों तरह की आग होता है. एबीसी इलेक्ट्रिकल की फायर के लिए भी डीसीपी यूज हो सकता है. अमूमन CO2 या हेलोट्रॉन या क्लीन एजेंट इसलिए रिकमेंड किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कि आपके जो सर्वर रूम्स हैं या और आपके जो डाटा बैंक्स वगैरह हैं, वहाँ पे अगर एक कंपोनेंट को आग लगती है तो डीसीपी जो है ना वो डस्ट की सूरत में सारे के सारे कंपोनेंट्स को खराब नहीं करते. इफ द पर्पस इज, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आग बुझाना या इक्विपमेंट बुझाना, इक्विपमेंट को बचाना. आग ज्यादा डेंजरस हो सकती है, इक्विपमेंट तो आप दोबारा भी ले सकते हैं ना, इंसानी जान तो दोबारा वापस नहीं आ सकती, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए. बेहतर है कि ये अगर आप इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद फायरबॉल, तो फिर आप FM200 या हेलोट्रॉन जो है वो ऑटो सेंसर के साथ लगा सकते हैं घर में. तो जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा इट विल ऑपरेट. लेकिन जनरली रिकमेंडेड ये है कि आप ये डीसीपी यूज कर लें. मेरे घर में दोनों होते हैं, डीसीपी भी होता है और हेलोट्रॉन भी होता है. CO2 तो अब जनरली रिकमेंड नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉस्ट बाइट, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, लोगों को स्किन पे अगर लग जाए तो आपका फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है CO2 से. जबकि हेलोट्रॉन जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है उसका, और उसमें इनर्ट गैस होती है,
इक्विपमेंट के लिए भी सेफ है, यूजर के लिए भी सेफ है। All right, so the next one is this is from एक Mr. क्वेश्चन था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी frequency to check. देखिए फ्रीक्वेंसी आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो उसकी आप वाटर लेवल चेक करते रहें। मैं अमूमन हर महीने जो है उसका वाटर लेवल मैंने वो इजी हाई लेवल पे रखी हुई है, तो मैं उसका हर महीने पानी चेक करता रहता हूँ। और वाटर लेवल कम्स डाउन तो उसमें आपका वाटर लेवल मेंटेन कर लें, और अगर चार्जिंग प्रॉब्लम है या ओवर हीट हो रही है तो आप कॉल दी इलेक्ट्रिशियन और रिप्लेस कर दें। बैटरी 2 साल बाद वैसे ही रिप्लेस करने वाली हो जाती है लेड एसिड बैटरी, तो monthly is okay. Okay, so Ghazanfar Sarada is saying where to get this dry run. ड्राई रन प्रोटेक्शन आपकी जो अच्छी वाली जो शॉप्स हैं जैसे मेरियट रोड पे हैं, डेंसोल की तरफ जो बड़े बड़े डीलर्स हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, उनके पास ही मिल जाते हैं ड्राई रन प्रोटेक्शन। अब वैसे आप ये अलीबाबा से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, लेकिन अगेन मेड इन चाइना, समटाइम्स देयर इज सरप्राइज with the Chinese products, so it's better use some authentic brand। तो वो आप वहाँ से जब लॉकडाउन सिचुएशन खत्म होगी तो you can market survey and get from there. Right. I think this is the last question we have from, okay, Mr. Ghazanfar is saying what is the difference between single phase and 3-phase meters? देखिए जो आपके पावर इक्विपमेंट होते हैं अमूमन वो सिंगल फेज पे रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए कि वो आपका मीटर जो है वो डिज़ाइन होता है 4 पंखे, 8 बल्ब और छोटी छोटी चीज़ों के लिए। एंड इफ़ यू आर यूजिंग 1 टन 2 टन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, तो उसके लिए, और आपकी मोटर, तो उसके लिए आपकी पानी की मोटर, उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप 3 फेज मीटर यूज़ करें। एक तो ये कि उसमें आपके एम्पियर ज़्यादा लेने की गुंजाइश होती है और ओवरलोड नहीं होता, जबकि आपकी वायरिंग जो पावर इक्विपमेंट के लिए होती है वो होती ही 3 फेज मीटर्स पे होती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका एक आध फेज जा रहा है तो यू कैन हैव फेज चेंज ओवर स्विच और आप दूसरे फेज पे पावर ले सकते हैं। सिंगल फेज में अगर वो गया तो आपको पूरे घर में देयर इज नो पावर। So you're saying what is the smoke detector and heat detector, and also we may be used in home or for safety. देखिए होम में अमूमन स्मोक डिटेक्टर इस्तेमाल होते हैं। हीट डिटेक्टर्स वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे आपके स्विच गियर रूम्स हैं, पैनल रूम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको पता बहुत देर से चलता है। और ज़ाहिर है कि हीट डिटेक्टर जो है वो उससे स्मोक डिटेक्टर इसलिए बेहतर है कि सबसे पहले तो आपका ओपन या विजिबल फ्लेम से ज़्यादा पहले तो स्मोक जनरेट होगा ना, और द मोमेंट इट डिटेक्ट्स तो आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा अलार्म। हीट डिटेक्टर्स जो हैं वो कन्फाइंड स्पेस में लगते हैं, अमूमन पैनल रूम्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हो गए। घर में आप कमरे में हीट डिटेक्टर लगा नहीं सकते, इसलिए कि आपका एयर कंडीशनर भी चल रहा है, ठीक है, और वो काम ही नहीं करेगा। तो उसमें स्मोक डिटेक्टर जो है वो रिकमेंडेड है। हीट डिटेक्टर जो है वो घरों में इसलिए काम नहीं करता, इसलिए कि जहाँ आप काम बैठे हुए हैं वहाँ पंखा भी चल रहा है, एयरकॉन भी चल रहा है, तो ये कन्फाइंड स्पेसेस के लिए होती है। Right. So any other questions we have? We are having like 4 more minutes to wind up the session. Anyone who would like to comment or ask anything? There is a very interesting comment by Mr. Ghazanfar Raza. Is there any qualified electrician exist in Pakistan? Like, yes, there are, because you just ask them to show their license, because Skill Development Council of Pakistan or Aman Tech Foundation, they issue license to qualified electricians, and very few people know about it. And Aman Tech Foundation and Skill Development Foundation, they are doing marvelous job, and I have seen a lot of electricians. If, for example, when I was working with Bayer in my company, even this contract electricians which we used to hire on daily wages basis, we first check their license.
So qualified electricians are available. आप चेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, अवेलेबल हैं पाकिस्तान में. आप इतना भी अंडर एस्टिमेट ना करें पाकिस्तान को. There are qualified electricians. May not be so many electrical engineers, लेकिन qualified electricians हैं. Okay, so the last question, I think Mr. Hamad is asking, what about the Wi-Fi and router and LiPo battery phone? देखिए, ये आपके वाईफाई हो, राउटर हो या LiPo बैटरी हो, सारे के सारे जो हैं वो काम तो इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं ना. और जैसे मैंने बताया है कि अगर 1 मिली एम्पियर में भी अगर कोई लीकेज होगा या चांस ऑफ शॉक तो है ना, सेंसेशन है. और सबसे बड़ी बात ये कि इन केस ऑफ मेल फंक्शन सबसे पहले तो इक्विपमेंट डैमेज होगा. और अगर वाईफाई को या राउटर को आप हाथ नहीं भी लगाते हैं तो इट कैन इग्नाइट इटसेल्फ. और राउटर में भी तो जाहिर है कि आपके पास वो बैटरीज होती हैं ना, एडाप्टर तो होता है ना उसका, राउटर का. Right. What type of fire extinguisher you should keep at home? Yeah, I would recommend DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, क्योंकि जो हेलोन है वो अमूमन लोग जो है ना वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे. उसमें चांस ये है कि इफ़ यू आर नॉट ट्रेन्ड, आपने फायर फाइटिंग की बेसिक ट्रेनिंग नहीं की हुई, तो आप किचन की फायर में भी CO2 या हेलोट्रॉन यूज़ कर लेंगे और इट विल एड फ्लेम टू द फायर्स, फ्यूल टू द फायर. ठीक है, क्योंकि वो स्प्रेड कर देगा. ड्राई केमिकल पाउडर ऐसा है कि जो कि एक यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तीनों ABC तीनों टाइप की आग के लिए, यानी गत्ता, लकड़ी, पेपर और इसके अलावा फ्यूल और ऑयल. तो और इलेक्ट्रिक की फायर के लिए भी वो यूज हो सकता है. So I would recommend DCP, ड्राई केमिकल पाउडर. Any other questions? We have just 1 more minute. Participants would like to comment anything. And thank you so much everyone for your appreciation. We have receiving a good feedback here. And one last comment from my side, right, that I'm glad somebody asked about fire extinguisher. घर में एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर 2 kg का या 3 kg का इतना कॉस्टली नहीं होता. And I'm sure it is not costly even at the आपकी एक इवनिंग की एक फूड पैंडा की जो मील ऑर्डर है ना, उससे भी कम कॉस्ट करता है ये. ठीक है, तो आप घर में रख सकते हैं. इनफैक्ट मेरे पास तो 2 रखे होते हैं, इसलिए कि एक अगर फिलिंग के लिए गया हुआ है तो दूसरा अवेलेबल है. आई वुड रिकमेंड 2 एट अ टाइम. ठीक है, स्मॉल 2 kg के आप परचेज कर लें मार्केट से और रखें घर में. Yeah, this is very important. Again, safety at home is something we should all take it seriously. With that note, I think we should end this session. So thank you participants, and thank you Khalid Saab for joining us and sharing this insightful presentation and interesting facts, which sometimes you all know all these things, but we ignore how to plug up things and how to just manage our electric appliances. So thank you so much for reminding us all of these things. With that note, we'll take a leave. And the participants who are asking about the presentation and the video recording, this would be available on MAPS YouTube channel. And if you want a presentation as well, so you can just email to us. You must be having our email addresses. Khalid Saab has already shared his email address and contact number. So whosoever want to have any one-to-one conversation with him, please feel free to. So anybody would like to come and discuss with me, so it's always welcome. All right. Yeah, the video will be uploaded in a day or 2 on MAC YouTube channel. So Ahmad was asking it. So thank you so much, participants, for taking out time. And Allah Hafiz. Have a good weekend. Thank you all. Thank you. Bye. Allah Hafiz.